गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आज का जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है हमारा पेनक्रियास, डिजीज़ ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, तो डिजीज़ ऑफ पेनक्रियास में सबसे पहला टॉपिक है हमारा पेनक्रियाइटिस। ठीक है, जिसे अग्नाशय शोथ कहते हैं। पेनक्रियास क्या है? सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। ठीक है, तो देखो इसमें 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 10 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, देखो क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंड्स पैरेन्काइमा ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, ये क्या कहलाता है? पेनक्रियास का इन्फ्लेमेशन पेनक्रियाइटिस कहलाता है। 2 तरीके देखने के लिए हमें कितने तरीके देखने के लिए मिलते हैं? एक्यूट पेनक्रियाइटिस, रिप्लेसिंग एक्यूट पेनक्रियाटिक्स, chronic pancreatitis, replacing chronic pancreatitis. Classification according to etiology है biliary tract disease, alcoholism, pancreatitis, post operative traumatic, rare cause जो है वो मम्स है, hyperthyroidism है, vascular disease है और idiopathic cause है। acute है, defined as abdominal pain associated, increase करता है pancreatic enzyme level को, blood करता है result के लिए और inflammatory disease of pancreas के लिए, carries करता है 10 to 20% of mortality rate, acute pancreatitis, sting like a scorpion, pain, acute pancreatitis, drink like a fish, dehydration, acute pancreatitis, eats like a wolf, produce pancreas necrosis, kill करता है leopard life fatality को। etiology है alcohol 50% of cases को stimulate करता है pancreas secretion को, rich in protein and forms protein polyp, result in the obstruction to the pancreatic duct। next जो है वो alcohol also stimulate करता है trypsinogen को, cause करता है expansion of sphincter of coli को। all these factors are result in the inflammation called the drunken pancreatitis। biliary tract disease like stones, gallstone, pancreatitis is the major cause of pancreatic ampullary tumor। drug है corticosteroid, estrogen and diuretics। endoscopic procedure, family और genetic factor, hypoparathyroidism, hypolipidemia, hypothermia, hypotension, malnutrition, infection, injury, pathogenesis and autodigestion followed activation of trypsinogen may be also due to the reflex of bile into the pancreatic। trypsinogen is converted into trypsin by bacterial infection and organisms like E. coli may be present in regurgitation, pancreatic fluid, act and stimulate the lipase, lactase and prostaglandins। next जो है वो आपका clinical feature है, sign है trioculins sign, great tunnel sign and Mahamenders prayer। attack concept of symptoms है, attack करता है, comes on at any time but frequently follow करता है injections of heavy metal or alcohol। symptoms है pain, nausea, vomiting, hiccups। ठीक है, इसके बाद आपके sign है ट्रैकोडमा है, faint jaundice seen during second day, probably it is obstructing and due to the edema of the head of the pancreas। shock abdominal finding है, tenderness in epigastrium, upper abdominal, growing and rigidity। treatment जो है वो उसमें एस्पिरेशन हो गए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करेंगे, सर्जिकल लेप्रोटॉमी है और आपका तमीज़ से बोला और तमीज़ से। उसके बाद है फंक्शनल डैमेज जो होता है वो क्या होता है, कॉजेज होते हैं अल्कोहल, ट्रॉफिकल पेनक्रियाटिक स्टोन होता है, हाइपर पैराथायराइडिज्म, सिस्टिक फाइब्रोसिस, आइटोपैथिक। तो देखो एसेंशियल चेंजेस क्रॉनिक पेनक्रियाटिक्स के क्या है, स्लोली प्रोग्रेसिव होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्ने होता है, इंक्रीज फाइब्रोसिस जो होता है विद कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शनल फेलियर होता है, अल्कोहल होता है, न्यूट्रिशनल हेरिडिटी और हाइपरथायराइडिज्म होता है, पैथोलॉजी डिस्ट्रक्शन ऑफ पेनक्रियास बाय डक्टल स्टेनोसिस, डक्टल स्ट्रक्चरल ग्रैंडुलर फाइब्रोसिस ऑफ कैल्सिफिकेशन बोथ इंट्रोड्यूस इन पैरेन्काइमल। क्लिनिकल फीचर है मार एब्जॉर्प्शन का रिजल्टिंग इन स्टेप्टो व वेट लॉस होता है, विटामिन डेफिशिएंसी एंड क्रेटारिया होता है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस क्या होता है? नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस क्या होता है। ये एडेमा होता है हेड ऑफ, ये हम कर चुके हैं ना, हेड ऑफ पेनक्रियास की वजह से पेन एंड एब्डोमेन होता है। डायबिटीज़ 10 to 20% होती है ड्यू टू द फेलियर ऑफ इंटरसेक्शन। इन्वेस्टिगेशन है हीमोग्राम, रेडियोग्राफ, प्लेन एक्सरे, पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन यूजुअली पैरा और इंट्राड्यूनल होती है, वेरियम मील होती है, एक्सरे कॉलिक सिस्ट हिस्टोग्राफी होती है, आईवी कोलिंगोग्राफी होती है, यूएसजी करते हैं, ईआरसीपी, सीटी स्कैन, स्पेशल फंक्शन टेस्ट में सीमोरम एनालिसिस करेंगे, स्टूल का एनालिसिस करेंगे।
लंच टेस्ट करेंगे। कॉम्प्लिकेशन जो है वो आपका कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज, सीरोसिस्ट है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस ड्यू टू द मास रीजन इन द हेड ऑफ पेनक्रियाज। अगर ट्रीटमेंट की बात करूँ, कंजर्वेटिव और सर्जरी दो तरीके है। कंजर्वेटिव में हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट होता है, लो फैट डाइट होती है, अवॉइड करती है अल्कोहल को, कंट्रोल डायबिटीज, एनीमिया शुड बी करेक्टेड, पेनक्रियाटिक एंजाइम टैबलेट शुड बी गिवन विद ईच मील्स, मल्टीविटामिन्स एंड एंटीबायोटिक। सर्जिकल ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो परसिस्टेंट पेन है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटिस है, ड्यूरनल ऑब्स्ट्रक्शन है, टाइप ऑफ सर्जरी है, क्रॉनिक पेनक्रियाटिक इन्वॉल्व करती है टेल ऑफ पेनक्रियाटिक को और डिस्ट्रीब्यूट करती है पेरानेक्टोमी को विद रिमूवल ऑफ स्प्लीन। डिफ्यूज में जो बात करें वो डायलेटेड पेनक्रियाटिक डक्ट है, लेड ओपन स्ट्रक्चर, कट ओपन एंड स्टोन रिमूव्ड, पेनक्रियाटिक जेजुनोस्टोमी इज डन। व्हाट इज पेनक्रियाटिक सिस्ट जो होती है दो तरीके की होती है, सूडोसिस्ट एंड ट्रू सिस्ट। सूडोसिस्ट जो होती है वो 80% होती है, ट्रू सिस्ट जो होती है वो 20% देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो pseudocyst क्या होती है? कलेक्शन ऑफ फ्री फ्लूइड इन द लेसर sac and occurs most frequent as a result of acute pancreatitis or sometimes after injury. This is called pseudocyst because it has no epithelial lining. Epitheliology है 2 हफ्तों तक अगर अटैक हो। acute pancreatitis usually appear after the blunt injury of the abdomen resulting in ductal disruption. Some causes of the chronic pancreatic may be associated with pseudocyst. Location है between stomach and transverse colon, between the stomach and liver, behind or below the transverse colon. Clinical feature की मैं बात करूँ, tonsillectomy, cystic mass in the epigastrium umbilicus region or left hypocardium. Peripherum of the palpation does not move with the respiration because it is retroperitoneal. Next जो है वो आपका टॉपिक है percussion, gives करता है रेजोनेंट नोट को बिकॉज ऑफ द स्टमक और द इंटेस्टाइन एंड transmitted pulsation from the aorta can be felt if the Ryle's tube is passed. It can be felt over the swelling if the patient is thin. Bed signs at the tender or non-tender which is depending upon the tension without the cyst. Investigation की बात करूँ, बेरियम मील फॉलो करती है through the projections of the cyst core into the hollow visceral, especially in the stomach. USG, CT scan, CT scan, ERCP. नेक्स्ट जो है ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ट्रीटमेंट है 50% ऑफ pseudocyst और द पेनक्रियाटिक रिवॉल्विंग द इटसेल्फ विद इन द 3 to 4 वीक्स। नेक्स्ट है सर्जरी इंडिकेशन की बात करें तो इंक्रीज करता है साइज ऑफ सिस्ट के लिए, सीवियर पेन के लिए। नेक्स्ट है आपका नो रेस्पॉन्स टू कंसेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका बात करूँ तो सर्जरी इंडिकेशन की इंक्रीज करती है साइज ऑफ सिस्ट को, सीवियर पेन को, नो रेजोनेंस टू द कंसेप्ट ट्रीटमेंट। ऑपरेशन है, ऑपरेशन है सिस्टोग्राफ्टोमी, डिस्टल पेनक्रियोटोमी विद द रिमूव ऑफ द टेल एंड सिस्ट, जेजुनोस्कोपी, एंडोस्कोपिक मेथड इज ऑल्सो बेनिंग डन टू द क्रोनिक सिस्ट। नेक्स्ट है ट्रू सिस्ट क्या होती है? 5 टाइप्स ऑफ सिस्ट। एडेनोमा होती है, म्यूकोविशंस होती है ऑफ द पेनक्रियास, सिस्टिक congenital cystic, तो इसमें क्या है? कॉन्जेनाइटल सिस्टिक डिजीज़ है, रिटेंशन ऑफ सिस्ट है, हाइड्रेटेड सिस्ट है। नेक्स्ट है आपका ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो लार्ज सिस्ट ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियाज है, ट्रीटेड विद द सिस्टोटेक्टोनोटोमी। लार्ज सिस्ट ऑफ बॉडी की ऑफ इज ट्रीटेड विद द सिस्टोग्राफी। सिस्ट ऑफ टेल ऑफ पेनक्रियाटिक ट्रीटेड बाय द एम्पुटेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द टेल ऑफ द पेनक्रियाज। कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज क्या है? तो ये पूछा जाता है 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर में। तो कार्सिनोमा ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियाज 70% होते हैं, कार्सिनोमा ऑफ बॉडी एंड टेल ऑफ पेनक्रियाज 30% है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की अगर मैं बात करूँ, मेल अफेक्टिंग मोर देन फीमेल होते हैं, एवरेज एज होता है, मेडियन ऑफ लाइफ, बाइलेरी लाइसिस, डीएम होती है। ठीक है, पेनक्रियाटिक कैल्सिनोसिस होती है। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ पैथोलॉजी की मेजोरिटी है सीए, पेनक्रियाटिक सीए की विच कैरीज फ्रॉम द डक्ट सिस्टम ऑफ एडिनोकार्सिनोमा एंड द बीइंग स्क्राइकेट्स गिव राइज टू द हार्ट विद नोड्यूल। ट्यूमर ऑफ द हेड ऑफ पेनक्रियास कंप्रेस द लोअर ऑफ द सीबीडी एंड causes the obstructive jaundice. Tumor of the body and tail may cause the DM of destruction of islets cell. Spread a local spread, lymphatic spread by the blood stream by peritoneal implantation result in acystic. Clinical feature है carcinoma of pancreatic present in 2 distinct ways, has painless progression, obstructive jaundice, pain, dull acne in epigastrium, recreating the back. Next है anorexia, diarrhea, loss of weight, enlargement of liver and distended gallbladder. Lump may be palpable in upper abdomen, severe protracted DM, as intractable pain without jaundice. Next है in case of the
the tale of pancreatic patient complains intractable pain in back at the level of C1 C2 vertebrae, especially on the left side of the pain, and in the was on the lie down and eased by sitting up by cleaning forward in the bed, backache, weakness, loss of weight, anorexia, diarrhea, pain in abdomen, signs at recursions, atrocian sign, thromboplatin, migratory thrombosis of leg can occur in the visceral malignancy, particularly from the CA of the pancreas, anemia है, DDS, CS of stomach, CA transverse colon है, para aortic lymph node mass investigation for painless progressive obstructive jaundice है. नेक्स्ट वन जो है TLC DLC इंक्रीज होता है, BT CT USG होता है, CT स्कैन होता है, BA मील एक्सरे होता है, रिवर्स्ड 3 साइन होते हैं. इन पेरी एम्पलरी CA प्रोवाइड करता है फिलिंग डिफेक्ट को विच मे बी गिव टू द डिफॉर्म टू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द डिओडनम presenting the reverse 3E sign, ERCP endoscopy, retrograded colon pancreatic valves operation, radial operation, duodenectomy in CA of the body, and the tail of pancreatic operation, tail pancreatic with the removal of the involved lymph nodes, palpated TT radiography, 4000 to 6000 GY units, injection 5 FU, 500 mg in 5% dextrose. नेक्स्ट जो आ रहा है वो आ रहा है टॉपिक. इसके बाद जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है प्लीहोदर. प्लीहोदर क्या होता है? विधवा अभिसंधि वस्तुओं से अधिक खाने में मनुष्य का रक्त व कफ अधिक रूप में प्रकोपित होकर प्लीहा को निरंतर बढ़ाता रहता है, इसे ही प्लीहोदर कहते हैं. लक्षण है प्लीहा वाम पार्श्व में बढ़ती है तथा इससे बढ़ने से रोगी विशेष रूप से ग्लानि युक्त रहता है. कफ संस्थान, अश्लीला, मंद ज्वर, मंदाग्नि, कफ एंड पित्त के लक्षण वाले उपद्रव से युक्त क्षीण बल तथा अधिक पांडु वर्ण का हो जाता है. सिरावेदन, वाम बाहु, कर्पूर संधि, अग्निकर्म, मणिबंध मोड़कर वाम अंग, छार प्रयोग, षटफल घृत. नेक्स्ट जो है वो आपका है टॉपिक प्रातिख्या. प्रातिख्या क्या होता है? प्रातिख्या भी इसी में देखने के लिए मिलता है कि विरेचन, सातला, रोहिणी, शंकिनी के स्वर से सिद्ध ग्रात द्वारा 1 मास तक 15 दिन तक विरेचन कराएं और कोष्ठ के शुद्ध होने पर मध्य के साथ केसर, गुंजा और कांदती के जड़ को कल्क पिलाएं. इसी को प्रातिख्या कहा जाता है. इक्षुकाष्टानी और कृष्ण सर्वेणी दंश मांस सदेते मूल व कंद विष का सेवन. नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो आ रहा है, जो टॉपिक है वो है स्प्लेनोमेगली. ये एनलार्जमेंट होता है स्प्लेन का. ये फैक्टर्स होते हैं कॉज करता है इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोअल, पैरासिटिक, एक्यूट ल्यूकेमिया को, क्रोनिक ल्यूकेमिया को, मेटाबॉलिक है, गैंचर डिजीज है, पोर्टल हाइपरटेंशन, कोलेजन डिजीज, मैलिग्नेंसी. क्लिनिकल फीचर्स की बात करूँ, पेलर जॉइंटिस, रिकरेंट फीवर, पेन एब्डोमेन, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लेन. हुक साइंस होता है ग्रेड 0 नॉर्मल है, ग्रेड 1 स्प्लीन पाल्पेबल है, ग्रेड 2 स्प्लीन पाल्पेबल है, ग्रेड 3 एक्सपेंस है, ग्रेड 4 स्प्लीन गोज आउट है, ग्रेड 5 स्प्लीन एनलार्ज्ड है. नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टिगेशन में फ्रेगराइल टेस्ट होता है, LFT रेटिकुलोफेराइल टेस्ट, फिकल टेस्ट होता है जिसमें कि उसके बाद रेटिकुलो फीकल यूरी बाइलिनोलॉजी USG भी करते हैं. उसके बाद ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ट्रीटमेंट में इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूशन और रिमूवल ऑफ स्प्लीन है, सूडो न्यूमोसिकल वैक्सीन है, सर्जिकल रिमूवल करते हैं. आयुर्वेद फॉर्मुलेशन में इसमें आरोग्य गर्दनी बटी, यकृत, प्लीहोदर, लोहो और निर्गुंडी चूर्ण देते हैं. रप्चर ऑफ स्प्लीन में क्या करोगे? मतलब कि स्प्लीन का फट जाना, तो उसमें पेनिट्रेटिंग इंजरी है, ब्लंट इंजरी है, एब्डोमेन हो सकता है, ऑपरेटिव और स्पॉन्टेनियस. क्लिनिकल फीचर की बात करूँ तो रप्चर ऑफ स्प्लीन वॉल हो जाती है, हेमेटोजेनिक शॉक की वजह से, एनीमिया की वजह से, कोल्ड की वजह से, टैकीकार्डिया की वजह से, एब्डोमिनल रिजिडिटी की वजह से. स्टेज जो है लेटेंट पीरियड है, डिलेड टाइप शॉक है. इन्वेस्टिगेशन जो है HB है, USG, CT स्कैन, एस्पायरेशन. ट्रीटमेंट की बात करूँ ऑपरेटिव है, सर्जिकल है. नेक्स्ट अगर बात करूँ तो अब आ रहा है हेमेटिक. नेक्स्ट जो है वो डिजीज ऑफ किडनी एंड यूरेटर आ रहे हैं टॉपिक. तो अब जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है डिजीज़ ऑफ किडनी एंड
यूरेटर। तो सबसे पहले इसमें आ रहा है अश्मरी। अश्मरी क्या होता है? पत्थर के समान स्वरूप वाले तथा संरचना को अश्मरी कहते हैं। वमन निदान है, वमन विरेचन निरोधादि विधि द्वारा शरीर का शोधन नहीं करना से अपत्य का सेवन करने से प्रकृति श्लेष्मा मूत्र के साथ मिलकर बस्ती का प्रवेश करके अश्मरी उत्पन्न करती है। आचार्य चरक के अनुसार गड़बड़ी गोदा बांस का रस सेवन करने से बालक को अश्मरी व शकरा रोग होने की संभावना होती है। संप्राप्ति की अगर मैं बात करूँ तो प्रकोपित वात दोष मूत्राशय में जाकर पित्त अथवा कफ के साथ शुक्र सहित मूत्र को सुखा देता है। जिस प्रकार गाय के पित्ताशय में गौरेचन की उत्पत्ति होती है, इसी प्रकार बातज में बस्ती में अश्मरी की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार मूत्र बस्ती में प्रवेश होता है, उस प्रकार वात पित्त और कफ में मूत्र के साथ बस्ती का प्रवेश कर मूत्र के उपसेद स्नेह से अश्मरी को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इसके अश्मरी के पूर्व रूप बस्ती में पीड़ा होती है, भोजन में आरुचि होती है, मूत्र क्रच होता है, बस्ती शिर होता है, मूषक और लिंग में पीड़ा होती है, मूत्र क्रच होने से ज्वर होता है, हृदय आदि का अवसाद होता है, मूत्र में बकरे के समान गंध आती है। समान लक्षण मूत्र त्याग करते समय नाभि बस्ती सेवनी और मेहन में पीड़ा होती है। मूत्र की धारा का मूत्र त्याग करते समय बीच में रुक जाता है। मूत्र के साथ रक्त का आना, मूत्र वितरणी गौमेदंती के समान आवली मूत्र का त्याग करना, मूत्र के साथ चित्ता शकरा निकलना और धावन लंघन गोष्ठवन अधुमन में वेदना उत्पन्न होती है। अश्मरी के भेद और विशिष्ट लक्षण श्लेष्म कफ पित्त वात और शुक्रमन। कफ में क्या होगी? अत्यधिक कफ वर्धक जो आहार विहार का सेवन करोगे उसकी वजह से हो जाती है। बस्ती धारण तोदन होता है, भेदन होता है। कफ अश्मरी में श्वेत वर्ण, स्पर्श में स्निग्ध, आकार में बड़ी तथा कुंटक मुर्गी की अंडे के समान और मधुक पुष्प के स्वरूप वाली अश्मरी होती है। अश्मरी आधुनिक शास्त्र में फॉस्फेट कैल्कस कहलाती है। पित्तज अश्मरी जो होता है, पित्त सहित कफ संघात तथा अत्यधिक बढ़कर बस्ती में मुख तो क्या होता है कि उसमें दहन होता है, पाचन होता है और आपका प्रतीत होता है तथा उष्णवात हो जाता है। पित्तज अश्मरी रक्त पित्त व कृष्ण तथा बलागतक अस्थि के समान अथवा मधु के वर्ण के समान होती है। अश्मरी आधुनिक शास्त्र में वर्णित यूरिक एसिड कैल्कस कहलाती है। वातज में वातयुक्त कफ संघात के स्वरूप में होकर तथा अत्यधिक बढ़कर बस्ती के मुख में स्थित होकर मूत्र मार्ग को रोक देती है तथा एकत्रित हुए मूत्र के प्रतिघात से शीघ्र वेदना उत्पन्न करती है। वेदना से पीड़ित होकर रोगी के दांतों को किटकिटाता है, नाभि को दबाता है, शिशिन को मसलता है, गुदा को छूता है, जोर से चिल्लाता है, परिस्राव होता है, वायु मूत्र और मल बड़ी कठिनता से प्रवाहरण होता है। इसके बाद शुक्रज में अधिक समय तक शुक्र के वेद को धारण करने से अथवा अधिक स्त्री संभोग करने से स्थान से चलित शुक्र न निकलने से विपरीत गमन होता है। तब वायु मेट तथा भक्षण के मध्य में एकत्रित हुए सुखा देती है। अश्मरी शुक्राश्मरी मूत्र मार्गों को रोक देती है और मूत्रक्रच बस्ती में पीड़ा करके वृक्षणों के शोथ उत्पन्न एवं दबाने पर वह अश्मरी विलीन डिसअपियर हो जाती है। अगर शकरा की बात करें तो शकरा में, सिक्ता में तथा भस्म में अश्मरी के कारण ही उत्पन्न होते हैं। संप्राप्ति या शकरा के लक्षण व वेदना अश्मरी के समान ही होते हैं। यदि अश्मरी अल्पकारक होता है, वायु अनुलोमन हो जाती है, मूत्र के साथ वह निकल जाती है और अश्मरी वायु से विदीर्णी होकर छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती है, उसे शकरा कहते हैं। शकरा के लक्षण होते हैं हृदय में पीड़ा, शक्ति सदन, कुक्षी शूल, व्याप्तु प्यास, शरीर में कालापन, दुर्बलता व पांडुवर्णता, अरुचि और भोजन का अविपाक। अश्मरी के उपद्रव हैं दुर्बलता आना, सदन कृशता, कुक्षी शूल, अरुचि, देह में पांडुता, उष्णवात, तृष्णा, हृदय में पीड़ा, वमन इन लक्षणों को उत्पन्न करती है। अश्मरी की चिकित्सा नवीन अश्मरी औषध चिकित्सा साध्य होती है, किंतु अश्मरी के बढ़ जाने पर शस्त्र चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। आचार्य चरक के अनुसार अश्मरी तथा शकरा में कफज वात मूत्र में चिकित्सा करनी चाहिए। वातज अश्मरी नाशक योग पित्त कौन कौन से पाषाण वेदी घृत वात नाशक गण के चार कषाय वागु व यूष का प्रयोग करना चाहिए। पित्तज अश्मरी नाशक योग में आप कुशाग्र घृत पित्तक गढ़ से निर्मित छार कषाय यवागु व यूष का प्रयोग। कफज अश्मरी नाशक वरुणादि घृत कफनाशक से निर्मित छार कषाय यवागु व यूष का प्रयोग। नेक्स्ट है पिच्चू ककोल कतक शाक और नील कमल के फल का चूर्ण को जल में गुड़ के समान घोलकर पीने से शकरा रोग का शमन होता है। और अश्मरी के निष्कासन हेतु गौक्षुर बीज चूर्ण को मधु में मिलाकर दूध के साथ सेवन करना चाहिए। सर्वप्रथम रोगी का शस्त्रगण में सर्वप्रथम रोगी का स्नेहन करके शोधन कर देना चाहिए। उसके बाद पश्चात अभ्यंग तथा स्वेदन करना चाहिए। भोजन से पश्चात बलि प्रदान, मंगल पाठ, स्वास्थ्य वचन ये सब करना चाहिए। इसके पश्चात बलवान एवं भयभीत न होने पर रोगी को घुटने की ऊंचाई के बराबर चौकी पर पूर्व दिशा में मुख करके बैठा देना चाहिए। दूसरे पुरुष की गोद में रोगी की कमर ऊपर वाला भाग उत्तान
रूप में रखना चाहिए। कटिंग प्रदेश में ऊंचा करने हेतु कपड़े की गद्दी नितंब के नीचे लगानी चाहिए तथा घुटने और कोहनी को मोड़कर एक दूसरे से डोरी या बस्तर से बांध देना चाहिए। इसके पश्चात नाभि प्रदेश में स्नेह से व्यंग करना चाहिए। वाम पक्ष में मलकर नाभि में नीचे मुट्ठी से तब तक दबाना चाहिए जब तक कि अश्मरी नीचे की ओर ना आ जाए। इसके पश्चात स्नेह से स्निग्ध कटे नाखून वाली बाएं हाथ में तर्जनी और मध्यमा अंगुली में प्रवेश कराकर अश्मरी को गुदा व मूत्रइंद्रिय के मध्य में लाने का प्रयास करना चाहिए। अंगुलियों में सीधे रखकर अश्मरी को दबाना चाहिए जिससे शल्य ग्रंथि में सामान ऊपर की ओर उठ जाता है। नेक्स्ट है, यदि अश्मरी निकलते समय रोगी के नेत्र स्तब्ध हो जाए व मूर्छित होता है, मृत व्यक्ति के समान गर्दन लट जाए तो मृतक के समान निर्विकार प्रतीत होता है, उस रोगी को शल्य नहीं करना चाहिए। वाम पार्श्व में सेवनी मात्रा प्रमाण में छोड़कर अश्मरी के प्रमाण यानी कि लंबाई के अनुसार ही शस्त्रकर्म करना चाहिए। कुछ आचार्यों के मत अनुसार क्रिया में सुविधा की दृष्टि से दाहिने राइट साइड शस्त्रकर्म करना चाहिए। नेक्स्ट, स्त्रियों में गर्भाशय बस्ती में समीप में ही रहता है, इसीलिए उनमें शस्त्र का प्रयोग उत्तान रूप में करना चाहिए अर्थात व्रण को अधिक गहरा नहीं करना चाहिए, अन्यथा स्त्रियों में मूत्र स्रावी व्रण हो सकता है। पुरुषों में पुत्र स्त्रीक में व्रण अश्मरी व्रण के कारण एक ही स्थान पर भिन्न हुई बस्ती वाला रोगी कर्मवश शास्त्र में निर्दिष्ट छेदन कर्म और मूत्र की बस्ती में नहीं रुकने के कारण जीवित रहता है। शल्य निकालने के बाद रोगी को उष्ण जल द्रोणी में बैठाकर स्वेदन करवा देना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो आपका बस्ती में रक्त एकत्र हुए चीर वृक्ष आदि को पुष्प नेत्र कैथेटर के द्वारा बस्ती में प्रविष्ट करवा देना चाहिए। अश्मरी निकालने हेतु आचार्य सुश्रुत ने वर्णित शल्यकर्म आधुनिक शास्त्र में लेटरल पेरिफेरल लिथोटोमी के नाम से जाना जाता है। पश्चात्कर्म शस्त्रकर्म के पश्चात उत्तर बस्ती के द्वारा शीरी वृक्ष पाद को बस्ती में प्रविष्ट कराकर अश्मरी और बस्ती रक्त को शीघ्र ही बाहर निकालना चाहिए। पश्चात आहार आदि सही पथ्य आहार देना चाहिए, ठीक है। और इससे शस्त्रकर्म के समय 8 संरचनाओं का संरक्षण करना चाहिए। सेवनी का, शुक्रवय का, मुष्क स्रोत का, गुदा का, मूत्र प्रसेक का, मूत्रवय, योनि और बस्ती का। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्जेनाइटल एनोमलीज ऑफ किडनी। क्या होती है? एजेनेसिस ऑफ किडनी, हाइपोप्लेसिया, डिस्प्लेसिया, सुपरन्यूरल किडनी, ड्यूप्लेक्स किडनी, होर्शू किडनी, एक्टोपिक किडनी, पॉलीसिस्टिक किडनी। एजेनेसिस ऑफ किडनी में रीनल एजेनेसिस इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वन और बोथ किडनी, यूनिलेटरल, बायलेटरल, कॉजेज जेनेटिक म्यूटेशन। 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? यूनिलेटरल एजेनेसिस, बायलेटरल किडनी सिम्टम्स होती है लंग्स, जनरल प्रॉब्लम्स, मसल टोन डिक्रीजेज, आई नोज, हाइपोप्लेसिया, लैक ऑफ सेलुलाइसिस, ऑर्गन और टिश्यू डिफाइंड एज smaller kidney with a normal morphology and reduced nephron number. Dysplasia, internal structure, both kidney do not develop normally and fulfilled sex replacement, normal kidney tissue. Supernumerary may be more than 1 kidney, मतलब 2 किडनी से ज़्यादा डुप्लेक्सिटी और कुड ऑल्सो नोन एज डुप्लीकेट कलेक्शन ऑफ सिस्टम, 2 यूरेटर कमिंग फ्रॉम द रिंग किडनी, एक्टोपिक किडनी, डिफेक्टेशन पोजीशन ऑफ द किडनी इज कॉल्ड एक्टोपिक किडनी, पेल्विक किडनी और क्रॉस रीनल एक्टोपिक रोटेटेड किडनी, हॉर्शू किडनी। ये क्या होती है? कॉन्जेनाइटल किडनी डिजीज होता है। किडनी फ्यूज करती है टुगेदर टू फॉर्म अ सिवियर शेप ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इन द वॉर्म। रीनल फेलियर होता है सुप्रा किडनी का। उसके बाद फैक्टर्स की बात करें तो कॉजेज होते हैं फेलियर ऑफ द कंप्लीट एसेंस ऑफ द किडनी occur due to the fusion of subdivision of occur due to the fusion of the subdivision of the mesonephritic kidney. Next, duct clinical feature है asymptomatic recurrence UTI, reusing science investigation USG, IVU, CT स्कैन है। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करूँ, कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट है, यूरेक्टोमी है, नेफ्रोसिस ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट है आपका डायलिसिस है, किडनी स्टोन और रिमूवल है। नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक किडनी। क्या होती है? जो एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होते हैं वो इनहेरिट करता है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज को। सिस्ट होता है फॉर्मेशन अकर एट द जंक्शन ऑफ द डिस्टल ट्यूब ऑन द कलेक्टिंग डक्ट और ग्रॉसली it contains the multiple cyst with a clean or the brownish fluid. नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल फीचर्स की बात तो बाइलेटर पाल्पेबल रेनल मास, लेन पेन है। उसके बाद हेमाटोयूरिया इन्फेक्शन, हाइपोटेंशन, यूरेमिया, यूएसजी में क्या करोगे? यूजी कंफर्म प्रेजेंस ऑफ सिस्ट, आईवीयू, स्पाइडर लेग पैटर्न में ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएशंस होंगे। ट्रीटमेंट की बात करो, वेट करो, वॉच करो पॉलिसीज को। इफ कॉज
पेन सर्जिकल ऑपरेशन करते हैं। रीयूजिंग ऑपरेशन किडनी जो होती है वो एक्सपोज करती है, सिस्ट को ओपन होती है, फ्लूइड एवैक्यूएटेड होता है। उसके बाद कट एंड मैस्कुलेशंस देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसके बाद आपको यूएसजी किडनी गाइडेड एफएमएसी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका रीनल कैलकुलस, जिसे प्रकाशमरी कहते हैं। किडनी स्टोन्स होते हैं, ये स्मॉल नेफ्रोलाइटिस होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डाइट एटियोपैथोलॉजी है, डाइट दोगे। उसके बाद आप सीजनल अफेक्ट होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन, इमोबिलाइजेशन होता है, हाइपरपेथोरेट टाइप्स ऑफ रीनल स्टोन, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड स्टोन, फॉस्फेट, सिस्टेन कैल्कस। सिम्टम्स होता है पेन, एब्डोमेन, नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, हेमेटोयूरिया, बर्निंग सेंसेशन, साइन एंड टेंडरनेस, रिजिडिटी, स्वेलिंग। इन्वेस्टिगेशन एक्सरे और यूएसजी है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ग्रुप थेरेपी है, एंटी इंफ्लेमेटरी, फ्लूइडिटी ऑफ द वाटर। नेक्स्ट है नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव, लिथोटॉमी, एंडोस्कोपिक लेजर लिथोटॉमी। ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की बात करूँ, पॉली लाइथोटॉमी है, नेफ्रोलाइथोटॉमी है, पॉलीनेफ्रोटॉमी है, पार्शियल नेफ्रोटॉमी है। अगर आयुर्वेद मैनेजमेंट की बात करो तो तणु आदि कषाय, टैब सिस्टोन देते हैं, गॉक्सुर आदि कषाय, टैब क्रश होते हैं। ठीक है, उसके बाद रीनल स्टैग हॉर्न कैल्कस, विल्म ट्यूमर या फिर नेफ्रोब्लास्टोमा क्या होता है, एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी का कैंसर होता है, चिल्ड्रेन में देखने के लिए मिलता है। फैक्टर कंपोजिशन होते हैं, ये राइज करता है एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू से कंटेन करता है। 3 एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट को लोकेट करता है। वन पोल ऑफ किडनी, इट इज लोकेटेड इन बायलेटरल 5% किडनी, कॉमन इन फर्स्ट 4th ईयर ऑफ लाइफ। टाइप्स है फेवरेबल हिस्टोलॉजी, अनफेवरेबल हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी टाइप्स होते हैं सिस्टिक नेफ्रोमा, मास्टोप्लोटिक, नेफ्रोब्लास्टिक। फेवरेबल हिस्टोलॉजी एफ विल्म्स मीन्स विदाउट एन प्लास्टिक फीचर, एंड अनफेवरेबल यूएसजी विल्म्स मीन्स इन एन प्लास्टिक फीचर्स। क्लिनिकल फीचर की बात करें, इंसिडेंस जो होता है वो इक्वल होता है बोथ सेक्सेस, स्ट्रेट में मास होता है, एब्डोमेन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंटेशन, स्मूथ, मोबाइल फ्रॉम हार्ड लॉब्यूलर एंड लोकेटेड इन द लायन मूव विद रेस्पिरेशन बाय मैनुअली पाल्पेशन। फीवर होता है, हेमेटोयूरिया होता है, हाइपरटेंशन 12% केसेस एसोसिएटेड विद कॉन्जेनाइटल एनीमिया एंड सिंड्रोम ग्लाइकोमा। नेक्स्ट जो है वो है हेमेटोयूरिया। ये क्या होता है, अब नॉर्मल प्रेशर होता है, ब्लड में यूरिया का फैक्टर्स होते हैं। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। किडनी में कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन, इंजरी, ट्यूमर है। यूरेटर में स्टोन्स है, पाल्पोमा है। यूरिनरी ब्लैडर, ट्रॉमा, ट्यूमर, इन्फेक्शन, स्टोन्स। यूरेथ्रा में ट्रॉमा, ट्यूमर, इन्फेक्शन। डायग्नोसिस, हेमेटोयूरिया में ब्राइट रेड कलर, पेपिलोमा, ब्लैडर पैथोलॉजी, रीनल स्टोन। अदर बेसिक टाइप्स, इनिशियल हेमेटोमा, टर्मिनल, डिफ्यूज, फॉल्स, साइलेंट। इन्वेस्टिगेशन है यूरिन एग्जामिनेशन, प्लेन एक्सरे, आईवीयू। ट्रीटमेंट की बात करूँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीबायोटिक, सर्जरी। रीनल एंगल क्या होता है, लेटरल बॉर्डर ऑफ यूरिनरी स्पाइन मसल्स एंड इंफीरियर बॉर्डर होता है, 12th रिब होता है। नेक्स्ट है आपका रीनल रिफ्लेक्स, क्या होता है, नॉर्मल किडनी में एफ्रंट रीनल इंक्रीज होता है, डिजीज में भी इंक्रीज होता है। ई फ्रंट डाउन होता है पर किडनी डिजीज में इंक्रीज होता है। सोडियम एक्सक्रीशन इंक्रीज होगा जबकि किडनी डिजीज में डिक्रीज होगा। रीनल सेल कार्सिनोमा, न्यूप्लाज्मा ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरनेफ्रोमा। रीनल एटम कार्सिनोमा, किडनी कैंसर। ए एक्वायर्ड, बी बर्थ और ट्यूब सिंड्रोम, सी क्रोमोसोमल डिफेक्ट, डी डाइट एनवायरमेंटल फैक्टर। ट्रेड ऑफ आरसीसी, पेन, हेमेटोयूरिया, पाल्पेबल रीनल मासेस, manifestation cause metastatic feature, stage 1 initial start, stage 2 tumor invade, stage 3 tumor extend, stage 4 infant beyond। investigation है, यूरिन एग्जामिनेशन है, प्लेन एक्सरे है। नेक्स्ट आपका आईवीपी है, यूएसजी है, सर्जरी है, रेडिकल नेफ्रोटॉमी, नेफ्रॉन सर्जरी, थेरापेटिक एम्बुलाइजेशन। उसके बाद आपका हेमोथेरेपी और इम्यूनोग्राफी। उसके बाद है आपका रीनल
किडनी इंजरी जो है वो क्या होती है, कॉमन बट पेरिटोनियल सीरीज ऑफ्टन इन्वॉल्व मल्टीपल ऑर्गन ट्रॉमा मैकेनिज्म है इसका। गन शूट इंजरी, डायरेक्ट ब्लो और फॉल इन द लेन, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ग्रेड 1 रीनल कॉन्फ्यूजन और सबस्कैपुलर हेमाटोमा। ग्रेड 2 लैक्रेशन टर्निंग अप टू द रीनल कॉर्टेक्स। ग्रेड 3 लैक्रेशन एक्सटेंड अप टू द रीनल कॉर्टेक्स टू द मेड्यूला। एंड ग्रेड 4 लैक्रेशन एक्सटेंडेड टू अप टू द रीनल टू कलेक्टिंग सिस्टम विद द थ्रोम्बोसिस रीनल आर्टरी विद रीनल अल्सर। ग्रेड 5 मल्टीपल। ग्रेड 4 lacration. Clinical feature lacration of browsing of overlying skin, abdominal wall, local pain and tenderness, associated fracture of lower hematuria, abdominal distension. Management है conservative IV fluids, PT, IV antibiotics, analgesic and blood transfusion. A surgical है small lacration, such as lacration confirmed to pain, severe rupture, nephrectomy. Next जो है वो है रीनल स्टोन्स। रीनल स्टोन्स की बात करें तो इंसिडेंस है 1 to 3%। इटियोलॉजी D से डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से अल्टर्ड यूरिनरी सोल्यूटेंट कोलाइट्स। आर से रीनल इन्फेक्शन। डी से डिक्रीज यूरिनरी सिट्रेट यूरिनरी स्ट्रेस। हाइपर पैराथायराइडिज्म, डिस्टर्ब्ड ऑक्सलेट मेटाबॉलिज्म, रेंडल्स प्लेटिंग थेरेपी, कार्ड थेरेपी। टाइप्स है ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, यूरिक एसिड, सिस्टाइन और सेरेटिन रेयर। रेडियो अल्सरनेट। क्लिनिकल फीचर की बात करो ए सिम्टोमेटिक में स्टैग हॉर्न कैल्कस होते हैं। सिम्टोमेटिक स्टोन में पेन होता है, फिक्स्ड रीनल पेन होता है, यूरेटिक कॉलिक होती है लंबर रीजन में, ठीक है। उसके बाद आपका है हेमेटोयूरिया, पायरीयूरिया और डिक्रीज फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिलती है इन्वेस्टिगेशन में, ब्लड एग्जामिनेशन फॉर सीरम। उसके बाद रीनल फंक्शन है प्लेन एक्सरे, आईबीपी, यूएसजी, सीटी स्कैन। रीनल कैलकुलाई जो होता है वो कंजर्वेटिव साइड लेस देन 5 सेंटीमीटर 5 mm, देन फ्लूइड इनटेक, यूरिनरी एल्कलाई, डायूरेसिस, टोटल ऑफ वेसेस, डाइक्लोटैक्टोमिक। नेक्स्ट जो है वो आपका आ रहा है स्टैग हॉर्न कैल्कस। क्या होते हैं, ये ऑक्यूपाई करता है, नहीं सर्जरी का क्या होता है, ओपन सर्जरी होती है, पाइलोपेराथोमी होती है, एक्सटेंडेड पाइलोथोमी, नेफ्रोलेथोटोमी, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी। मॉडर्न सर्जरी में एक्स्ट्रा कॉपुलेटिव शॉक होता है, वेव लिथोट्रिप्सी होती है, पेरिक्यूटेनियस नेफ्रोटोमी लिथोटोमी होती है। नेक्स्ट जो है वो आपका स्टैग हॉर्न कैलकुलस क्या होता है, ये स्टेज ऑक्यूपाइंग होते हैं रीनल पेल्विक और कैलकुलस का फीचर है पेन, फीवर, बर्निंग सेंसेशन, हेमेटोयूरिया। एंटीबायोटिक्स दोगे, PCNL, ESW, ओरल कैमालिसिस दोगे। यूनिलेटरल स्टोन कंपोस्ट ऑफ मैग्नीशियम, अमोनियम फॉस्फेट और वाइट इन कलर, सॉफ्ट इन नेचर, स्मूथ स्टोन, ग्रो इन अल्कलाइन यूरिन एंड अमोनियम इंक्लूडेड। नेक्स्ट वन है पेरिफेरल एब्सिसिस में पेरिफेरल एब्सिसिस में आप रेफ्रेक्टरी कलेक्शन ऑफ पस इन पेरीनेफ्रल एरिया नोन एज पेरीनेफ्रल कॉजेज है हेमेटोजेनियस स्प्रेड एक्सटेंशन। इन्फेक्शन में देंगे पायोनेफ्रोसिस, पेरीनेफ्रिक एब्सिसिस, क्लिनिकल फीचर हाई फीवर, पेन, टेंडरनेस, प्लेन इन्वेस्टिगेशन, ल्यूकोसिटिक साइटोसिस, प्लेन एक्सरे या बीजीपी, यूएसडी, सीटी स्कैन, बेड रेस्ट, एंटीबायोटिक। एपिस्पेडियासिस, here the urethra opens in the dorsum of the penis, present in the veins. Commonest in the site is at the abdominopenital junction. It is associated with the dorsum chordate ectopicia, vesical urethra incontinence, separated pubic bones. It is common in females. Correction of incontinence of urethra, urinary distension, situs, inflammation होती है mucus का, urinary bladder का, ascending infection in 1 degree, source of injection. Men are soft when protecting from the ascending infection of the long urethra, antibacterial action of the prostatic section. उसके बाद है causes E. coli 70% है, Propherius, Clostridioides, Streptococcus है। नेक्स्ट वन है आपका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, अर्जेंसी, क्लिनिकल फीचर डाइसूरिया, लो बैक पेन, सुप्राप्यूबिक डिस्कम्फर्ट, IVG, माइल्ड स्ट्रीम यूरिन, यूरिन मैनेजमेंट, एंटीबायोटिक्स है, प्लेंटी ऑफ वाटर टेक, पेरीनेट्रल एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट जो है वो एक्टोपिक वेसिकिया है, ये क्या होती है, ये एक इनकम्प्लीट ब्लैडर का एंट्रोपी का क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ इंट्राट्यूबुलर पार्ट ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल एंड एंटीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर एसोसिएटेड विद द स्पेक्टिविक अदर कॉन्जेनाइटल एनोमलीज, कॉमन इन मेल्स।
4:1 umbilicus. There is a separation of pubic bone in male episiotosis and commonly positive. Tests are normally bilateral. Angular hernia is common in female. Defective external genital are common. Rupture, the repeated sockage. Clinical feature है repeated sockage, ulceration, pain, recurrent pyorrhea, renal failure. Treatment है iliac ostectomy and the closure of abdominal or correction of episiotomy, cytostectomy. Rupture of bladder and the bladder injury. Block, kick or fall, road traffic accident, endoscopic trauma, diathermy. Type instrumentation. Type intraperitoneal rupture 20% common. Occur in fully deserted bladder due to the block, kick or fall. Extraperitoneal rupture 80% common due to the road traffic accident, golf playing, fall, manfall. Clinical features: sudden pain in suprapubic region, shock and cyno, diffuse abdominal pain, urine locked to the abdominal cavity linked to the distension of abdomen. Later it is cause feature of peritonitis with gravity, rigidity, IVG, plain X-ray, USG, CT scan, cytogram. Surgery is only treatment. Next, hyposplendonosis is the only cause congenital malfunction of the urethra. In this condition, the external metastasis is situated proximal tube normal on the ventral aspect of the penis. Classification: granular, coronal, penile, panoscrotal, perineal with a split scrotal. Features: abscess of urethra, corpus spongium flowing or the bending of the penis, urine soakage over the scrotum associated with the congenital anomalies. Stages: procedure at the stage of 1 or 2 year surgical correction of the urethra is done. Next one, at the age of 5 to 7 years, reconstruction of the urethra is done. Perineal urethrosurgery is done for diversion, Dennis Brown procedure, and myopia repair. Next, anuria. It is a non-passage of the urine defined as less than 100 ml of urine. Failure to produce the kidney, cause of diabetes, high BP, stone, BPH. Clinical feature: anuria, kidney failure, or treatment. Underlying cause: nephritis, Bruxelles, inflammation of kidney, glomerular tubules. Intestinal types: factors, glomerulonephritis, intestinal nephritis, subtype chylomicronephritis, lumpous nephritis, attenuated nephritis, cause of infection, toxins, autoimmune. Symptoms of pink colored urine, foamy, high BP, fluid retention. अगर बात करूँ कॉज बाय डिपेंडेंस और एंटीबायोटिक्स हम इसमें देते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिजीज ऑफ प्रोस्टेट, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे. अब के लिए इतना काफ़ी है.